Hello students, welcome to Rajni classes. Today we are continuing our unit 2 polynomial exercise 2.5. It is the last part of our exercise. Okay, today we complete our exercise 2.5. Let's start with question number 10 as we have already completed up to question number 9. Okay, let's start. Factorize each of the following. Your 10th question is you have to factorize these. Okay, in 9th question, we verify a formula which is AQ plus BQ is equal to A plus B into A square minus AB plus B square. We have to use this formula, okay, for this. So 27 is the cube of 3, it's 3y cube plus its cube of 5z whole. Now you are having formula and you have to just put this formula in your equation. Okay, that is 3y plus 5z multiply 3y square whole square. Okay, then minus 3y into 5z plus 5z whole square. Okay, now just open these squares only because we are going to factorize, so no need to multiply. 3y plus 5z 9y square minus 5 3s are 15 yz plus 25 z square, and this completes your part 1 of question 10. Now come to part 2, which is equal to 64 m cube minus 343 n cube. Okay, again we can transform it as 64 is the cube of 4, that is 4m whole cube, minus 343 is the cube of 7, to 7n whole cube. And what is the formula for that? In 9th question we also study about this formula. A cube minus B cube is equal to A minus B into A square plus AB plus B square. Let's use this formula in our equation. That is 4m minus 7n into 4m square plus 4m multiplied by 7n plus 7n whole square. Just open it. That is 4m minus 7n into 16m square plus 7 4s are 28 mn plus 7 7s are 49n square. And this completes our second part of question number 10. Now move to question number 11. Yes, now it's question number 11 beta. Factorize 27x cube plus y cube plus z cube minus 9xyz. This is the formula. A cube plus B cube plus C cube minus 3ABC is equal to 1 by 2 into A plus B plus C, A minus B whole square, B minus C whole square, C minus A whole square. We have to use this formula, and when we start this exercise, I have given a list of formulas to you. This is one of them. Okay, let's use this. Here we have 27. Okay, first write your question only. 27x cube plus y cube plus z cube minus 9xyz. First change it into this formula, that is equal to 3x whole cube minus
वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड. Okay, same this formula is there. Now use this 1 by 2. You can write here by using formula. Okay, you can write here by using formula, or we can say identity. We write it as 1 by 2 into 3x plus y plus z. Okay, now square bracket 3x plus y square minus y into y minus z square plus z minus 3x square. That's okay. Now let's continue with it. 3x plus y plus z. इसको ओपन करिए. 3x square plus y square minus 3 to the 6xy. Okay, then plus y square plus z square minus 2yz plus z square plus 3 3 is 9x square minus 6zx. हमने इसको ओपन कर दिया. किसमें? इसका होल स्क्वायर ओपन किया, इसका होल स्क्वायर एंड इसका होल स्क्वायर. आपके पास आंसर आया 1 by 2 इंटू 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू ये आ गया 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर माइनस 6zx. अब सेम टर्म्स को कंबाइन कर दीजिए. 1 by 2 इंटू 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 9x स्क्वायर एंड 9x स्क्वायर, दैट इज 18x स्क्वायर. वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 6xy 2yz एंड 6zx. हम इन सब में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 1 by 2 इंटू 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 2 कॉमन ले लिया हमने, तो 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx और 2 से 2 कैंसिल. ये आपका आंसर आ गया. ओके बेटा, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 12. नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज वेरीफाई दैट. ये फॉर्मूला है, अभी आपने किया बेटा, आपको इसको वेरीफाई करना है. ओके, तो हम क्या करेंगे, हम ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, ये राइट हैंड साइड होती है, तो हम राइट हैंड साइड लेके चलेंगे और उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे. हमारी राइट हैंड साइड है 1 by 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड. ओके, एंड ब्रैकेट एक्स माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वेयर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वेयर. करिए इसको ओपन. 1 by 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई. अगेन प्लस बीच में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस
minus yz plus z square plus x square minus zx. Now again open it. 1 by 2 into x plus y plus z. X square plus y square minus xy plus y square plus z square minus yz plus z square plus x square minus zx. 1 by 2 into x plus y plus z into x square 2x square plus 2y square plus 2z square minus xy minus yz minus zx. यस बेटा देखो आप फॉर्मूला में यहाँ 2 मिसिंग है ना, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, तो यहाँ पे भी आपके 2 मिसिंग है। क्लियर? तो यहाँ पे भी ओके। अब आगे कीजिए, देखो सब में 2 है तो 2 कॉमन ले लीजिए। 1 बाई 2 मैंने कॉमन ले लिया तो यहीं ले लिया, ठीक है। आपके पास बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और आपकी जो 8th आइडेंटिटी थी ना, जो मैंने स्टार्टिंग में कराई थी 8th आइडेंटिटी बाय यूजिंग, ये 2 यहाँ 2 से कैंसिल हो गया, बाय यूजिंग 8th आइडेंटिटी। उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल है, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। ठीक है, सिमिलरली आप यही वाला फॉर्मूला यूज करके आपका क्वेश्चन 11 भी कर सकते थे। ठीक है, वो वाला ये वाला फॉर्मूला ना यूज करके ये आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो बेटे क्वेश्चन 11 में। तो अब ये इसके इक्वल आ गया, इसका मतलब ये किसके इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड के। तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट। आपको यही प्रूव करना था। एंड दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 12। नाउ move to next question, that is question number 13. Yes beta, now question number 13, if x plus y plus z is equal to 0, show that this equals to this. आपकी आइडेंटिटी 8 थी, by आइडेंटिटी 8 क्या थी वो, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस z इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये थी आपकी आइडेंटिटी। इसमें उसने कहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड को 0 पुट कर दो, करो 0 पुट, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसको रहने दो, यहीं से करो, इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। हमें पता है 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होता है तो उस पूरी टर्म को 0 बना देता है। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z इज इक्वल टू 0, which is equal to x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz।
Okay, and this proves our identity. So we can write hence proved. Yeah, hence verified. Now continue with question number 14. हाँ जी बेटा, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अभी आपने पढ़ा कि अगर इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz. ठीक है, तो हम पहले यही चेक करते हैं कि ये 0 के इक्वल है कि नहीं. तो लेट्स -2, since you will write since -12 plus 7 plus 5, 7 plus 5 12, 12 minus 12 is 0. Since it is equal to 0, so -12 cube plus 7 cube plus 5 cube is equal to 3 into -12 into 7 into 5. ठीक, तो 12 3s are -36 मल्टीप्लाई बाय 35 विच इज इक्वल्स टू, आप रफ में मल्टीप्लाई करके देखिए, विच इज इक्वल टू -1260 and that completes your question. Now again in second part, first check since 28 minus 15 minus 13 is equal to 0, क्योंकि 28 minus 28 is 0, so 28 cube plus minus 15 cube plus minus 13 cube is equal to 3 into 28 into minus 15 into minus 13. ओके, मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आंसर आएगा आपका बेटा? हेयर इज माइनस एंड माइनस, दो माइनस हो गए तो प्लस में आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो आप आएगा 16380, दैट इज 16,380. आप इन सबको रफ में मल्टीप्लाई करके देख लेंगे एंड दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 15. बेटा दिस इज क्वेश्चन नंबर 15. आपको एरिया गिवन है, आपको लेंथ एंड ब्रेथ निकालनी है. मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, दैट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन. ओके, दैट्स व्हाई यू कैन चेक फ्रॉम द बुक. एरिया गिवन है आपको इसकी लेंथ एंड ब्रेथ बतानी है. लेंथ एंड ब्रेथ अलग अलग फाइंड आउट करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो फैक्टर्स होंगे, तो जो दोनों फैक्टर्स होंगे दैट आर द आंसर्स. ओके, अब फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके और चेक करते हैं कि मिडल वाला आंसर किसका आएगा. ठीक है, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 12, 300 आ गया आपके पास. ठीक है, अब 300 के फैक्टर्स करो, क्या हो सकते हैं जिसका आंसर. यस बेटा, 300 आ गया था 25 एंड 12 का मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, हमने उसके प्राइम फैक्टराइजेशन किए. नाउ चेक कि किन दो मल्टीप्लीकेशंस का 35 सम या सब्ट्रैक्शन आएगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन. 25 एंड 12 देखते हैं. 5 5 25 एंड 12, 25 एंड 12 35 नहीं बनाते, तो नेक्स्ट हम करते हैं कि हम कर लेते हैं 5 3 15, 5 2 10 एंड 2 20, 20 एंड 15. ठीक है, 20 एंड 15 मेक्स 35, बट यहाँ नेगेटिव है तो मीन्स ये दोनों नेगेटिव, ये भी नेगेटिव. ओके बेटा, नाउ पुट 25a square minus 20a square minus 15a plus 12. ओके, कॉमन लीजिए, 5a कॉमन आया तो 5a minus 4, और यहाँ पे minus 5 कॉमन आया दोबारा से, तो 5a minus. ओके, आपके पास आ गया 5a minus 4 and 5a minus 5. ओके, तो possible length possible
length and breadth are 5a minus 4 and 5a minus 5. ओके, अब सेकेंड पार्ट करते हैं हम इसका. इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो लेंथ एंड ब्रेथ दो आएंगी आपकी. ठीक है, अब 35 इंटू 12 होता है 420. मैंने फैक्टर्स आपके पहले ही प्राइम फैक्टर्स करके रखे हैं, तो ये हो गया आपके प्राइम फैक्टर्स. अब देखिए कि 13 किस में आएगा. 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 एंड 7 ज़ा 70 और 15 इसमें तो नहीं आएगा. नाउ 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28 और 5 3 ज़ा 15 इसमें आएगा. अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ठीक है 13, पर देखो यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का. प्लस का है मतलब ये प्लस का होगा और 15 माइनस का. ठीक है, लेट्स पुट 35y स्क्वेयर प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12. 7 की टेबल में है ये दोनों. 7y कॉमन तो 5y माइनस 4 और यहाँ पे क्या कॉमन 3, 5y माइनस 4. यहाँ पे प्लस आएगा बेटे, यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस कॉमन ले लिया तो हमने, है ना. तो आपके पास आ गया 5y प्लस 4 और 7y माइनस 3. सो पॉसिबल लेंथ एंड breadth are 5y plus 4 and 7y minus 3. Okay, now move to next question. Yes beta, next question 16. This is your, now beta, your question number 16, the last question of this exercise and this chapter 2. What are the possible expression for the dimensions of the cuboid whose volume are given? वॉल्यूम है तो मतलब L इंटू बी इंटू एच आएगा. ठीक है, मतलब आपको इसको 3 में डिवाइड करना है. ठीक है, लेकिन ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फैक्टर्स आपके 2 ही हो सकते हैं. इट मीन्स समथिंग बिकम्स कॉमन, कुछ हमें कॉमन लेना पड़ेगा. अब यहाँ से देखिए, यहाँ से मैंने 3 कॉमन लिया, x कॉमन लिया. ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा x माइनस 4. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स माइनस 4 ऐसे लिख सकते हैं हम इसको. तो हमारी पॉसिबल डायमेंशंस क्या होगी. सो पॉसिबल डायमेंशंस आर 3x and x minus 4. These are our possible dimensions. Okay बेटा, now second part. यहाँ पे भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो आपको कुछ कॉमन लेके सोल्व करना पड़ेगा जिससे आपके पास 3 डायमेंशन आए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स 2 ही होते हैं, 2 से ज्यादा नहीं होते. तो यहाँ पे क्या कॉमन आ सकता है. सबसे पहले तो 4 कॉमन आएगा क्योंकि 12, 8 एंड 20 सभी 4 की टेबल में आते हैं. उसके बाद k कॉमन आएगा. ओके, 4k हमने कॉमन ले लिया. अंदर क्या बचा 3y स्क्वेयर प्लस 2y माइनस 4 5 25. ओके, अब हमें इसके फैक्टर्स करने हैं. मल्टीप्लीकेशन हमारे पास है 15. ठीक है, 5 3 15 और एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमारे पास 2 आना चाहिए. तो 5 एंड 3 प्लस में आ रहा है तो प्लस 5 एंड माइनस 3. ओके बेटा, तो 4k इंटू हम क्या करेंगे 3y स्क्वेयर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 4k. अब यहां से कॉमन लीजिए,
मैंने कॉमन लिया y, तो मेरे पास बच गया 3y + 5, और यहाँ से कॉमन लिया -1, तो 3y + 4k इंटू 3y + 5 इंटू y -1, तो आर पॉसिबल डायमेंशंस आ गए तीनों. सो पॉसिबल dimensions are 4k, 3y + 5 and y -1. And this completes your chapter as well as your exercise. At last, I just want to say, subscribe my channel, like my videos if you understand the topic well. If you have any problem, then write in comment box so that I can solve your problems. And thank you very much. Bye.